So first of all, we are going to be covering this assignment of probability. Let's see the questions and then let's, do you want me to take all questions or just the doubts? All questions. All questions? Okay, let's see. So there are 6 marbles in the box and numbered 1 to 6. So we have a sample space of 1 to 6. Let me write the sample space. Sample space ऐसे लिखते हैं. Sample space क्या होता है? जितने भी outcomes possible है. So we have 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है. What is the probability of drawing a number with marble 2? तो ऐसे कितने outcomes है? एक favorable outcomes is 1, which is 2. Number of favorable outcomes is 1 and that is equal to 1 divided by total outcomes कितने हैं? 6. तो n is equals to 6 divided by 6, so 1 by 6. A option. A coin is flipped to decide which team starts the game. The probability that it will start is, since आपके पास head या tail यही दो आ सकते हैं, this is your sample space. So probability of आपसे पूछी गई है head क्या होगी, ठीक है? मतलब probability of head या tail क्या होगी, तो दोनों ही क्या होती है 1 by 2. What is the probability your team will start? That is 1 by 2 because an unbiased coins gives 1 by 2, 1 by 2 probability. A die is thrown. What is the probability of getting prime number? तो die throw में 1, 2, 3, 4, 5, 6 outcomes होते हैं and then इनमें से prime कौन कौन सा है? 2 is prime, 3 is prime, 5 is prime. So how many outcomes? 3 outcomes. Total number of outcomes 6, which is equals to 1 by 2. So that is it. Now for our questions 4 to 13, we have cards marked from 1 to 25. So your sample space is 1, 2, 3, so on till 25 and mix thoroughly. One card is drawn at random. Answer the following. Probability of getting a number 5. So 5 आने की क्या probability है? There is just one card out of this whole deck of cards जिसमें से एक card 5 है और सारे कितने हैं? 25 total. So this is 1 by 25. C option. Probability of getting a number less than 11. Less than 11 number कितने हैं? Less than 11 means 11 is not included. So 1 से लेके 10 तक 10 numbers है जो included है. Divide by 25. This is equals to 2 by 5. Next, probability of number getting greater than 25. So since greater than 25 कोई number ही नहीं है, तो this is an zero probability impossible event. Next, what is the probability of getting a multiple of 5? So you can get a multiple of 5 as 5, 10, 15, 20 and 25. Since numbered card है तो 25 भी included है. So कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5 by 25, which is 1 by 5. Now probability of getting an even number. अगर कोई भी कार्ड से 1 से लेके 25 तक इसमें कितने even number है, कितने odd numbers है? So it has 12 even numbers and 13 odd numbers. Okay, 12 even क्यों? Because first और last दोनों odd है, so there is one more odd number than the even number. So 12 even, 13 odd, 12 by 25 is even number probability. Okay, next, probability of getting odd number निकाल लिया अभी हमने 13, 12 and 13. What is the probability of getting a prime number? A prime देख लेते हैं कितने. So we have 2, 3, 5, 7, 11, 13, next 17, 19, then 23. Yeah, that's all. So how many are there? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 by 25. Okay. It's very important to note कि आपको याद होना चाहिए 1 से लेके 100 में कितने प्राइम नंबर्स होते हैं? बोलो, याद है तुम्हें? 25, 25 प्राइम नंबर्स होते हैं. कंपोजिट कितने होते हैं? 74 because 1 is unique. तो इस क्वेश्चन में मत फंसना कभी. Okay, probability of getting number divisible by 3. तो हमें इसे simply last factor देख लो, 24 divided by 3. This is equals to 8. So 8 multiples of 3 are there. This is 8 by 25. Probability of getting a number divisible by 4. Again 24 by 4 कर लो. 6. So we have 6 number divisible by 6. तुम काउंट भी कर सकते हो, नो प्रॉब्लम, जो भी तुम्हें इजियर लगे. बट आई एम डूइंग इट सिंपली क्योंकि 1 से काउंट स्टार्ट हुआ है तो डिवाइड कर दो अगर मैं 4 से तो वही आ जाएगा नंबर. ठीक है. नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर डिविजिबल बाय 7? सो 7 से डिविजिबल कितने होंगे?
Last number is 21 by 7. We have 3. So that would be 3 by 25. A bag has 4 red balls. So we have red balls 4. And thank you. 4 red balls and how many yellow balls? So yellow balls है हमारे पास 2. 4 red balls, 2 yellow balls, ball and drawn at random. Probability of red ball क्या होगी? Total number of balls is 8. So you have 4 by 8, which is equals to, sorry, 6. My bad. Oh, सभी गायब हो गए. So just a second. Red is 4, yellow is, बोलो, 2. Total 6 हो गए. We have 4 by 6 या फिर probability of red is 4 by 6 या 2 by 3. Again, what is the probability of yellow ball? क्या होगी probability? This will be 2 by 6, which is 1 by 3. So 2 by 3, 1 by 3. Next, we have 3 blue, 2 white, and 5 red marbles. If marble is drawn at random, so probability it will be white. Total कितने हैं? Total is 10. इसमें से white कितने हैं? 2. 2 by 10, which is 1 by 5. Probability marble will be red. That will be 5 by 10, which is 1 by 2. Probability marble will be blue. That is 3 by 10. Next, probability marble will be of any one color. तीनों में से कोई भी एक हो सकता है. One certain event. इन तीनों में से ही तो कोई एक होगा. कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर इसका ये मतलब नहीं हो सकता, कोई भी कलर हो सकता है. वेल, अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन गिवन इसका वो मतलब नहीं हो सकता, बिकॉज हमें नहीं पता कितने कलर्स की बात हो रही है. कलर्स आर लाइक, देयर आर मेनी कलर्स, देयर आर लिटरली बिलियंस ऑफ कलर्स. इन फैक्ट शेड्स की अगर बात करो तो शेड्स में तो बिलियंस आ जाएंगे. बट दैट इज द रीजन हम इनमें गिवन कलर्स को ही कलर्स देंगे. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी द मार्बल विल बी रेड और ब्लू? रेड भी हो सकता है, रेड या ब्लू. रेड एंड ब्लू होता तो क्या होती है इसकी प्रोबेबिलिटी? 0. रेड एंड ब्लू एक साथ एक टाइम में मार्बल हो ही नहीं सकता. तो रेड और ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या है? रेड और ब्लू, दैट इज 5 + 3, 8 by 10 और 4 by 5. अब हमने डाइस थ्रो करा है. 1 है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस आने वाले हैं. फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर. सो प्राइम नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? हम कर चुके हैं. हमारे पास प्राइम कितने नंबर है? 1 2 3 4 5 6 आर आर आउटकम्स और सैंपल स्पेस. इसमें से प्राइम कौन कौन से? 2 3 and 5. So that is 2 by 3 by 6 or 1 by 2. Probability of getting a number between 2 and 6. Between 2 and 6 means 3 4 5. Again 3 by 6 or 1 by 2. Find the probability of getting an odd number. 1 by 2. क्योंकि 3 odd है तो 3 even है. Find the probability of getting even number. This is also 1 by 2. Probability of getting number greater than 4. This is 4 से greater 5 है, 6 है. दो outcomes, तो 2 by 6, which is 1 by 3. अब ये होनी क्या? अच्छा, मार्बल थी ना. क्या क्या आंसर आ रहा है इसके बताओ. लाइक इसका पहले का ऑप्शन. अच्छा, 5 रेड, 6 white, 6 white and 4 green. हमें क्या करना है? टोटल कितने हो गए? 15. सो प्रोबेबिलिटी 6 by 15, which is equals to 2 by 5. सो नहीं है इसमें ऑप्शन. 2 by 5. Probability that marble will be red, so that is equals to 5 by 15, 1 by 3. Probability green की, that is 4 by 15. So none of these. What is the probability marble will be of any one color? Probability red or green. Red plus green कर दो. That is 9 by 15 or 3 by 5. So नहीं है. So again none of these. Probability marble will be blue. 0. There is no blue marble. 1 to 50 है. Probability of getting number 5. एक कार्ड है 1 to 50 में जो कि 5 है बस. तो इसमें क्या होगा? Card mark is 1 to 50. One card drawn at random. Ask for getting number 5. 1 by 15 ही होगी. 25 क्यों? 50 क्लास प्लेस्ड है ना. 7 to 50
नहीं, आंसर है वो, ये नंबर्स तो 1 to 50 है, तो 1/50 होगी ना, एक ही तो 5 का नंबर का कार्ड है, ठीक है। I'm thinking something else. Let me think. So 5/50, 5/50 कितने हुए? 1 2 3 4 5 क्या? नहीं, कुछ और देखो। मल्टीपल ऑफ 5 में क्या आएगा? 6/50 आएगा, which is 6/50 is 3/25। ये भी तो ऑप्शन में नहीं है। एनीवेज, तो ये तो 1/50 होगा, ये ऑप्शन बाय 1/50। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 11। लेस देन 11 क्या, कौन कौन कितने नंबर्स होंगे? 10 numbers, divide by total 50, you get 1/5। Probability of getting number greater than 50, not possible, impossible event। Probability of getting a multiple of, I was getting 3/25, right? नहीं, ऑप्शन में नहीं। हाँ, मैंने 10 इंक्लूड किया, मैं तो बहुत सारे इंक्लूड नहीं करे ऐसे, मैं तो कुछ और चेक कर रहा था। 10 एंड देन 20, 25, सॉरी 20, 30, 40, 50, कितने हुए? 110 है तो ओके, 10 है तो 1/5 हो जाएगा। So 10/50 which is 1/5। सारे ऑप्शन ही रॉन्ग है, बी से ई एफ दोनों गलत है। What is the probability of getting an even number? Even number में 1/2, सॉरी even number में आएगा, कितने टोटल मल्टीपल्स वी हैव? अच्छा देखो, 1 से हम क्या कर रहे हैं? 50 कर रहे हैं, तो टोटल नंबर्स कितने हुए? 50 नंबर्स है, हाँ, तो 1/2 ही होगी। 50 नंबर्स और 50 नंबर ही हुए। जब भी आपके पास इवन सेट ऑफ नंबर्स होते हैं, अगर आपके पास इवन सेट ऑफ नंबर्स है, तो आपकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी इवन ऑड की, वो 1/2 आएगी, या इक्वल आएगी हमेशा। जब आपके पास ऑड सेट ऑफ नंबर है, तब आपको एक्चुअली काउंट करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, उसमें ऑड एक ज्यादा होगा इवन से। तो अगर n मतलब टोटल नंबर ऑफ आउट जो भी है आपके पास आउटकम्स, दैट इज इवन, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इस क्वेश्चन में इवन और प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड विल ऑलवेज बी 1/2। बट अगर आपके पास n ऑड है, तो आपकी जो भी प्रोबेबिलिटी अगर मान लेते हैं आपकी आएगी इस केस में, मतलब कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहता मैं, बस इसमें डिफरेंट आएगी, ठीक है। माय गॉड, इसमें प्रोबेबिलिटी डिफरेंट आएगी, मीनिंग अगर मान लेते हैं आपके पास x इवन है, तो x+1 क्या होंगे? ऑड होंगे, and then you will be done with probability of even is equals to x/2x+1, and probability of odd will be x+1/2x+1। So anyways, x even number है, x odd number। Next, that the probability of number divisible by 3, so we have 57/3 करते हैं, so we have 3 1 3 3 9 27 19/50 नहीं होगा? Am I doing something wrong? क्या आ रहा है? 3 के कितने मल्टीपल्स है? जो कितने नंबर है 1 से 50 के बीच में जो डिविजिबल बाय 3 है? 16 होंगे। क्यों? 16 क्यों होंगे? अच्छा, हाँ सही कह रहे हो, मैंने ज्यादा, हाँ सही, 57 से डिवाइड कर दिया, सॉरी ना। एनीवे, सो 16 है, एंड देन 16 डिवाइडेड बाय 50 गिव्स 8/25। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर डिविजिबल बाय 4, ये कितने आएंगे? 48, 12/6/25, या divisible by 7 is 7/25। 7/25, तो उसमें है नहीं, तो
सर हमने ऐसे सारा वो कर लिया 7/50 होगा, 25 क्यों होगा? 50 है ना टोटल तो। ओके, या सो आगे के जो क्वेश्चंस है ये भी कर लिया ना तुमने? चलो देखते हैं। एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी मतलब आप क्या कर रहे हो, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल प्रोबेबिलिटी में आप क्या करते हो, जितने आपको आउटकम्स दे रखे होते हैं उससे टोटल आउटकम्स डिवाइड करते हो। तो वी हैव हेड 560 टाइम्स, टेल्स कितने टाइम्स होंगे, 440, टोटल हमारे पास है 1000 टाइम्स। सो इसमें एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इन दिस केस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इक्वल टू 560 डिवाइड बाय 1000 which is equals to 0.56. Two coins are tossed 200 times. The following outcomes are recorded: 56, 110, 34. So, empirical probability of at least one head. At least one head का मतलब क्या हुआ, कम से कम एक हेड, तो एक हेड हो सकता है एंड दो हेड हो सकता है, सिर्फ टेल वाले नहीं होंगे। सो 56 प्लस 110 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स 200, दिस इज इक्वल्स टू 166 डिवाइडेड बाय 200, तो ये 83। ठीक है, सारे इंपेरिकल में आपको डिवाइड करना था बस। तो गेटिंग वन क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वन इन द अबव केसेस 0.28। पता नहीं किससे डिवाइड कर रहे हैं हम, यू आर डिवाइडिंग 556 डिवाइड बाय 200, तो जो भी इसके इनके हाफ हाफ प्रोबेबिलिटी है सबकी। इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 4, लेस देन 4 इन तीनों को ऐड करना है आपको। तो 56 प्लस 22 प्लस 30 विल गिव यू, मतलब कैलकुलेट करा होगा ना आपने, 56 प्लस 22 प्लस 30 इज 112, 108 divided by 200, so you're getting 0.54। नेक्स्ट ग्रेटर देन 4 की, अगर लेस देन 4 आ रहा है आपके पास, अच्छा सॉरी, ग्रेटर देन 4 में ये दोनों इंक्लूड होंगे, 32 प्लस 18 डिवाइड बाय 2, सो यू हैव 50 by 200 which is 1/4 और 0.25। सिमिलरली ये क्वेश्चन भी आप कर लोगे। Yeah, so simple, very simple questions. I don't have think if there is any question जिसमें प्रॉब्लम हो तो मेरे पास कार्ड्स वाले भी कर लिए होंगे आप। ठीक है, so these were pretty simple questions, इसमें कभी गलत मत होना। Now let me give you some more questions. Just for a quick revision, let me remind you some things. तो आपके पास प्रोबेबिलिटी का मतलब तो कभी नहीं आता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो आप निकालते हो, हमारी केस में हम सारे के सारे थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। तो हम थियोरेटिकल प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे हैं। लास्ट क्लास में जो आपने पढ़ी थी वो एम्पेरिकल या फिर एक्सपेरिमेंटल बोलते थे उसे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज सिंपली गिवन एज नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, सो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स divided by total number of outcomes. Okay, so yeah, that's it. Now probability of an event अगर 1 हो तो हम उसे बोलते हैं certain event या फिर sure event, and अगर probability of an event is 0 we call it a impossible event. There is a very big difference between possibility and probability. Possibility versus probability. So often people confuse possibility with probability, meaning कि अगर किसी चीज की दो possibilities है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पासिंग एंड फेलिंग की पॉसिबिलिटी, दो ही पॉसिबिलिटीज, आप एग्जाम में पास और फेल कर सकते हो। ठीक है, दिस डज नॉट मीन बोथ हैव द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1/2 1/2। ठीक है, दैट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज योर लाइक बैकग्राउंड, कैसे टाइप के बच्चे हो आप, या फिर पेपर कितना आसान था, कैसे क्वेश्चंस थे। एंड फॉर एग्जांपल अगर उस क्वेश्चन एक रैंडमली सेलेक्टेड टेस्ट पेपर ले जिसमें 100 क्वेश्चंस है एंड उसमें पासिंग मार्क्स 25 है, तब भी पासिंग एंड फेलिंग की प्रोबेबिलिटी 3/4 एंड 1/4 होगी, नॉट 1/2 1/2। तो अगर आप रैंडमली तुक्के लगाओ सारे क्वेश्चंस में 100 के 100, तब भी देयर इज अ 3/4 प्रोबेबिलिटी दैट यू विल पास, which is a 75% probability that you will pass अगर आपके 100 क्वेश्चन आते हैं तो।
ठीक है, क्योंकि 25 लाख लाना एज यू नो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट इवन इन अ लाइक रैंडम सैंपल की बात करें कि तुम्हें कोई भी क्वेश्चन नहीं आता, not you're not even taking an educated guess, so we call it. So also probability of e not का मतलब होता है, इसका मतलब होता है not e meaning कि इवेंट हो जाए, ऐसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि हेड्स, तो नॉट हेड का मतलब क्या होगा, टेल्स। हाँ ठीक है। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट plus probability of not of an event, or this is known as negation of an event, is always equals to 1. Okay, PE plus PE not is 1. So yeah, अब इसके अलावा सैम्पल स्पेस, जितने भी आपके आउटकम्स होते हैं उसे बोलते हैं सैम्पल स्पेस, ऑल पॉसिबल आउटकम्स। and that is all that is in your course. Other than that, जो भी हमने mutually exclusive वगैरह की बातें करी थी probability में, that is technically not in your course. You'll never be asked if they are mutually exclusive, if they are independent. This is all the things that you'll be studying in senior classes. That is not in your course. Now इसके अलावा आपको बस events पता होने चाहिए experiments के। तो अगर आपके पास इन्हीं चार टाइप्स में से एक क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल द फर्स्ट टाइप इज कॉइन टॉस। कॉइन टॉस में यू हैव, आई हैव डिस्कस दिस, वन कॉइन टॉस होता है तो यू हैव आउटकम्स हेड टेल। अगर दो कॉइन टॉस होते हैं तो वन कॉइन टॉस होता है तो आउटकम्स कितने होते हैं, आउटकम्स इज 2। ठीक है, बिकॉज इट इज 2 टू द पावर, जितने ऑप्शंस है एंड जितने ट्रायल्स लिए 2 टू द पावर 1 विच इज 2। नेक्स्ट अगर दो कॉइन्स होते हैं तो दिस इज कितने आउटकम्स है पॉसिबल 2, एंड कितने ट्रायल्स हुए 2, तो 2 टू द पावर 2 4। वी हैव हेड हेड, then head tail, then tail head and tail tail। अगर आपके पास 3 होते हैं तो 2 टू द पावर 3 बन जाते हैं 8 आउटकम्स, एंड आपको सिर्फ क्या करना होता है, 4 बार हेड, 4 बार टेल, देन 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार हेड, 2 बार टेल, देन ऑल्टरनेटिवली हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल, एंड यू हैव ऑल द पॉसिबल आउटकम्स जो भी आपको चीजें निकालना। ठीक है, इसमें यू विल हैव टू मेक श्योर, जनरली 3 से ज्यादा नहीं आते, अगर 4 आएंगे तो भी आप बना सकते हो। द मेथड आई टॉट यू वाज सिंपली ट्री बनाओ। तो पहला टॉस करा, व्हाट डू यू गेट, हेड और टेल। देन नेक्स्ट टॉस करा, क्या मिला, हेड और टेल, यहाँ से भी बन सकता है हेड और टेल, एंड देन थर्ड टॉस करा तो यहाँ से भी हेड और टेल, एंड हेड और टेल, हेड और टेल, हेड और टेल। नाउ यू विल नॉट गेट क्वेश्चन जिसमें पहले कॉइन टॉस करते हैं देन डाइस थ्रो करते हैं या समथिंग लाइक दैट कंपाउंड, बट जब भी आपको ऐसे क्वेश्चंस आएंगे आप हमेशा ट्री बना के करोगे, सारे आउटकम्स लिखोगे। ठीक है, सो दिस इज हाउ, हमने इससे बहुत ज्यादा एडवांस क्वेश्चंस कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक दिस शुड बी अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम वुड बी इन एटलीस्ट, सो एटलीस्ट हमेशा याद रखना, एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम, बार बार याद दिलाता हूँ, ये बोल लिया करो तुम्हें समझ आ जाए क्वेश्चन, एंड एट मोस्ट मतलब ज्यादा से ज्यादा। ज्यादा का एक और यार मैं जैसे लिखना होगा था एनीवे। सो इफ आई से कि आपको कम से कम 100 मार्क्स लाने हैं एंड ज्यादा से ज्यादा 100 मार्क्स लाने हैं, मतलब मैं कितने मार्क्स लाने कह रहा हूँ आपको, 100। ठीक है, तो दे कैन बी क्वेश्चंस इनमें जो उनको कंपाउंड कर दे कि इट इज एटलीस्ट 5 बट एट मोस्ट 5। सो इट मींस दैट वो 5 की बात कर रहे हैं, कम से कम 5 भी और ज्यादा से ज्यादा 5 भी हो, मतलब वो एग्जैक्टली 5 होगा। एटलीस्ट एंड एट मोस्ट का कंपाउंड इज द नंबर इटसेल्फ। ज्यादा से ज्यादा, क्या ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा है, मैं ऐसे लिखता हूँ, तुम ज्यादा पढ़ लो, मुझे क्या दिक्कत है, जो मर्जी पढ़ लो, आए बड़े। एनीवेज इसके अलावा आपको और एंड का मतलब भी पता होना चाहिए। और का मतलब होता है दोनों के आउटकम्स ऐड कर दोगे आप, आउटकम्स ऐड हो जाएंगे। ठीक है, एंड का मतलब होता है ओनली कॉमन आउटकम्स। अगर आपको एग्जांपल चाहिए तो अगर आपने डाइस थ्रो करा है तो इससे ही डाइस थ्रो का भी देख लेते हैं। डाइस थ्रो करा है, so you have outcomes 1 2 3 4 5 6। तो एक डाइस को थ्रो करने पे आपको 1 to 6 to the power 1 आउटकम्स विच इज 6 आउटकम्स मिलते हैं। एंड देन उन आउटकम्स में अगर आपको बोला जाए कि अ नंबर दैट इज बोथ कंपोजिट एंड इवन, सो कंपोजिट एंड इवन,
तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, वो और सारे पहले कंपोजिट आउटकम्स लिख लो। कितने आउटकम्स है कंपोजिट, वी हैव 4 6, दो ही आउटकम्स है कंपोजिट। इवन कितने हैं, 2 4 6, 3 आउटकम्स है। इनमें जो भी कॉमन है वो सारे ले लो। तो इनमें कॉमन क्या है, 4 एंड 6, तो टोटल आउटकम्स 2 डिवाइड बाय 6 1/3। सो एंड में आप क्या करोगे, कॉमन लोगे। अगर और लिखा होता, तो अगर इसी केस में और लिखा होता तो आपको दोनों के आउटकम्स ऐड करना है, विच इज 2 प्लस कॉमन, 2 प्लस यहाँ पे कॉमन वालों को हटा के 1, विच इज 3/6 1/2। कॉमन तो दो बार काउंट नहीं कर रहे ना, डबल काउंटिंग मत करना। एंड में अगर ये भी देखना है तो आउटकम्स ऐड करो, माइनस कॉमन कर दो। जितने भी कॉमन आउटकम्स है वो माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज डबल काउंटिंग ना हो ना, लॉजिकल है फॉर्मूला। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, बस लॉजिक समझा, ठीक है। सो दैट इज इट। अगर दो डाइस होता है तो आपको 36 आउटकम मिलते हैं, 6 to the power 2 विच इज 36। उसमें आपको पूरी एक चार्ट बनानी पड़ती है 6x6 की, एंड देन उसके बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। कभी कभी उसमें सम के क्वेश्चंस आते हैं कि सम क्या हो डाइस पे, सम का मतलब सम इवन हो ऑड हो। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछते हैं प्रोबेबिलिटी दैट सम इज इक्वल्स टू इवन, बताओ क्या होगी। हाँ सम, तो देखो सम हो क्या सकते हैं, तो हमारे पास जितने भी आउटकम्स है, ठीक है 6 आउटकम्स है, 6 × 6 टोटल आउटकम्स कितने हैं 36। अब याद करो मैंने तुम्हें थोड़ी देर पहले क्या बोला था, अगर हमारे पास, अच्छा यहाँ पे नहीं लिखा मैंने, उस शीट पे लिखा था कि अगर हमें इवन ऑड निकालना हो और हमारे पास जो एन हो वो इवन हो, तो हमेशा प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/2 1/2। तो डज नॉट इवन मैटर अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ सम ऑफ नंबर्स इवन पूछ रहे हैं, तो यू माइट थिंक कि कितने सारे नंबर देखने पड़ेंगे, कितने सारे निकालने पड़ेंगे, बट द फैक्ट इज कि इट इज 1/2। नाउ दिस इज बेटर इफ इट कम्स इन एमसीक्यू, बिकॉज एमसीक्यू में नहीं आएगा तो आपको दिखाना पड़ेगा कैसे 1/2 है। यू कैन नॉट जस्ट राइट की 1/2, बिकॉज द सैड पार्ट इज कि एक बहुत ही ऐसा बच्चा जिसने बिल्कुल प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ी है, वो भी 1/2 आंसर लिखा और तुम भी 1/2 लिखोगे। इट इज डिफिकल्ट फॉर टीचर टू डिफरेंशिएट इन सब्जेक्टिव पेपर कि किसने तुक्का लगाया है, बिकॉज दैट इज द बेसिक गेस। प्रोबेबिलिटी निकालनी इवन ऑड की, मैं 1/2 होगी। माय गॉड, तुम खुद भी शहीद होगे, मुझे भी कराओगे। एंड देन पैक ऑफ 52 कार्ड्स में मैं आपको पहले कार्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ा चुका हूँ, जिसमें ब्लैक कार्ड, रेड कार्ड, 13 13 13, फेस कार्ड, किंग क्वीन जैक। फेस कार्ड अगर कभी भूल जाओ लाइफ में तो याद करना, फेस कार्ड मतलब चेहरा किस पे होता है, एस पे चेहरा नहीं होता। किंग पे चेहरा होता है, क्वीन पे चेहरा होता है, एस कौन है, एस कोई नहीं होता। किंग क्वीन जैक तीनों के चेहरे होते हैं, ठीक है क्या, देखो कार्ड थोड़ी है, पत्ते खेल दिए तो उससे नहीं ना, मतलब ये क्या लॉजिक हुआ, हद हो गई। Anyway, so with this, you can cover a lot of questions. The only type of questions which might confuse you or problematic is key find the probability two people have birthday तो बहुत कर चुके, died on the same day. Two people have same death anniversary. death The DTH. DTH. death day नहीं मनाते, कोई birthday तो बहुत मनाते हैं। Death day. डेथ डे बुलाते तो नहीं है। So funerals बोलते हो। So even there's a movie named Happy Death Day. तब बनाते होंगे, आपको क्या पता। मैंने देखी भी है। एनीवे, सो टोटल आउटकम कितने हैं हमारे पास, सोच के देखो। हर एक दिन 365 है, एंड देन 365 के साथ तो 365 मल्टीप्लाई होगा, बिकॉज दैट इज द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यू हैव अ मैट्रिक्स ऑफ 365/365। इसमें से कौन कौन से वो डेट्स होंगे जिनको आप जो फेवरेबल है, all 365 days, which is 1/1 2/2 3/3 4/4 और Jan Feb, ऐसे करते करते 365 आउटकम्स फेवरेबल है। टोटल आउटकम 365 into 365 है, which makes the final answer 1/365. Interesting. So the thing is, yeah, that is interesting because काफी बच्चों को लगता है एक दिन ही आएगा इनमें से कोई, ठीक है, मतलब probability of this is 1. No, this is not calculated in this way, this is calculated in this way. What if leap year? क्या लीप ईयर, तब भी आंसर सेम आएगा, 366 डिवाइड बाय 366 into 366, तो यार आंसर विल बी 1/366, नॉट दैट डिफरेंट, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चंस आते हैं कि दो दोस्त शॉपिंग पे जा रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के बाद जाता है, तो क्या है कि वो कॉन्सेक्यूटिव डेज में जाएंगे, ठीक है। मान लो एक पर्सन है, मान लेते किसको भेजे, आरब को भेजते हैं। मेरा नाम क्यों होता है?
आरव मंडे टू फ्राइडे शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, एंड शिवांश मान लेते हैं शिवांश जाता है थर्सडे टू लेट्स से संडे, तो थर्सडे और संडे जाता है। आपको निकालनी है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दे बोथ पहला पार्ट गो ऑन सेम डे एंड देन सेकेंड पार्ट गो कंसेक्यूटिव डेज। अब कंसेक्यूटिव डेज क्यों जानना चाहे कोई, है ना, ये क्वेश्चन आएगा तुम्हारे कि हमें क्या मतलब एक दूसरे के बाद जा रहा है। मान ले आरब को शॉपिंग डिस्काउंट मिलता है, वो कूपन लेके आके शिवांश को देता है, या फिर शिवांश को कूपन मिलता है एंड वो आके आरब को देता है, तो कंसेक्यूटिव देखने की जरूरत है ना, एक दिन के लिए वैलिड कूपन है तो उसे निकालो, जल्दी करो। Go on the same day, 2/7 क्योंकि 2 ही दिन में कॉमन है। पहले ट्राई करो फिर बोलो, लिखो आउटकम्स, लिखो सारे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव की तरह सॉल्व करो, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो। दिस इज नॉट एन इजी सिंपल क्वेश्चन, सो इट रिक्वायर्स यू यूजिंग योर ब्रेन, सो लिखो। 25 से 20। सर बोलो। सर वो दुकान में ही सो जाते हैं क्या? हाँ, तेरे को ये डाउट आया ना इतना, इस पूरे क्वेश्चन तेरे को ये डाउट आया है तो कहां में सो जाते हैं। आप बेशरम बच्चे हैं रे, जल्दी करो। सर ये तो साथ में क्यों नहीं गए? अरे तू क्वेश्चन कर, क्वेश्चन नहीं करते हो तुम, पहले पर हानिया बता।